Okay, Danish, please go ahead with your introduction. Thank you, ma'am, for giving me the opportunity to introduce myself. I am Danish. I belong to Jodhpur district of Rajasthan. Currently, I am pursuing MTech in thermofluid and I have graduated in mechanical engineering from Jodhpur Institute of Engineering and Technology. I am working on my MTech project, simulation and modeling of Kalina cycle using ammonia water as a working fluid. And my hobbies are like playing football and watching football games. तो दानिश, टेल मी समथिंग जो अपने फॉर्म में नहीं मेंशन किया है। ये सब चीजें आपने फॉर्म में मेंशन की हैं। Yes, ma'am. जो चीज The thing that I didn't mention in my form is that I am pursuing MTech, but my MTech is not completed. That's why I have not mentioned it. Okay, fine. So currently you're pursuing your MTech, right? Yes. Why you're not looking for the opportunities which will come after MTech? After MTech भी आपको बहुत opportunities मिलेंगी. Why you're not waiting for those? Actually, I want to work in the core sector, and like majority of the core sector industries are like taking through the GATE exam only. So that's why I gave the GATE exam, and I want to go in the technical field only, not in the like BDE role and SDE roles. And major of the opportunities are for the SDE and BDE roles only. That's why. अभी और कौन से PSUs को टारगेट कर रहे हो या पर्टिकुलरली सेल को ही टारगेट कर रहे हो? Particularly, sale is like first in my like priority, and other PSUs I am also targeting like NTPC. But if I get the chance to work in sale, I will opt for sale only among the others also. Why a PSU? Why are you preferring PSUs? Like the PSU, the major motive of the like to work in the PSU is that they are taking the projects of the nation, and that gives the like exposure is like huge, because the locations and the culture is different as compared to the like private jobs. And as a trainee, प्राइवेट जॉब ऑल्सो दानिश, आपको यही चीज, आपको एक्सपोजर, आपको इतने प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीजें आपको प्राइवेट में मिलेगी. no ma'am, like the projects which are taken up by the PSUs are mainly like the core projects only. Like SAIL has taken the project of the like example, the parliament, new parliament which was built Mandapam. The major of the steel was made by the sent by the SAIL only, not other like private firm has also not like working in that domain. And the like major construction site like CPWD projects has also SAIL has involvement in. So like in the if we I want to work in the field work only, and I think SAIL is the like major opportunity I can. हॉबीज क्या हैं आपकी दानिश? फुटबॉल? Like yes ma'am, watching football games and playing football. ओके. अभी कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो? दैट इज वर्किंग ऑन व्हिच एमटेक प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग? Like my first part of MTech project is completed, and it is like it is related to thermal power plant only, on which cycle it is operating. थर्मल पावर प्लांट का इंटरेस्ट स्टील में कैसे चला गया? Like the opportunity during 2023, I got that with my GATE score is that thermal only. That's why I decided to pursue. But my major focus was on the like in the steel or like the manufacturing domain only. सेल के प्रोडक्ट्स बता दो, कौन कौन से प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है सेल? Like the major products and the famous products are like rails and the wheels and axles of the train, and the billets and blooms. What do you know about SAIL? Like SAIL is a Maratna company, and current CMD of the SAIL is Amrendu Prakash, and it comes under the Ministry of Steel and Heavy Industries. And mean Sri HD Kumar Swamy is the Minister of the Steel Industry, and SAIL is the like
major contribution of the and the major vendor of the sales are like Indian Railway and CPWD. Danish, you're coming from which city? राजस्थान के किस पार्ट से आते हो? Jodhpur, जोधपुर से आते हो। और अभी सेंटर कौन सा आपका ऑफ द इंटरव्यू? Delhi ट्रेवल कैसे करोगे? बाय विच by मीडियम? train. बाय By ट्रेन? train. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ट्रेन? Yes, ma'am. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ट्रेन? Like the Mandor Express it is. कितने आवर्स की जर्नी लगाओगे? Approximately 11.5 hours. 11.5 आवर्स। जो Yes. AQI लेवल है, एयर पोल्यूशन इंडेक्स ऑफ राजस्थान और दिल्ली में कितना डिफरेंस है? Between like 250 or 300. अभी दिल्ली का कितना चल रहा है? Above 500. अबव 500। Yes. व्हाट इज द अल्टीमेट रीजन कि दिल्ली के पास इतना क्यों हो गया? अभी दिल्ली ने चंडीगढ़ को भी क्रॉस कर लिया था इन एयर पोल्यूशन इंडेक्स। व्हाट इज द प्राइम रीजन? Prime reason is like actually the neighboring states are like producing pollution due to stubble farming and fog is collecting and due to which dense particles are not settling down. That's why the major reason is that only. तो विच आर दोस सिटीज? आपने बोला कि पास वाली सिटीज इम्पैक्ट कर रही है, कौन कौन सी सिटी? Haryana and Punjab. व्हाट अबाउट यूपी? यूपी के नहीं लगता? It is there, but major of the like agriculture sector is like in Haryana and Punjab only. That's why. और कितने टाइम में प्रैक्टिस हो गया? अभी कब तक सेटल होने की उम्मीद है? It will settle in like 1 month. 1 मंथ में सेटल हो जाएगा? Yes, ma'am. ओके। एंड व्हाट गवर्नमेंट आर टेकिंग द प्रिवेंटिव मेजर्स? अभी आप दिल्ली में लैंड हुए हो, क्या प्रॉब्लमेटिक Yes, ma'am. प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे आप? अभी कर रहे हो प्रॉब्लम्स फेस? Problem is that like the visibility is not clear and the Delhi government is trying to like sprinkle the artificial rain to settle down the like dust in the fog because it is difficult to travel in the fog. Visibility is not clear. With the help of artificial rain, they can settle down the dust. They are planning to do so. They are planning to sprinkle the water. बहुत cities में, अभी चंडीगढ़ में भी in sector 17 the sprinklers were being used. What is the use of that sprinklers and how does it settle down the smoke? कैसे कम करता है air pollutants को? Yes, sir. Actually, the major problem with the like in Delhi is that major it is in the fog only because fog is light in weight and they are not settling down. They are in the like atmosphere only, and fog is carrying the dust. So ultimate aim is to like settle down the dust on the ground. If they are sprinkling the water, then it will carry away all the dust from the like atmosphere and it will ultimately settle down. Favorite subjects कौन से दानिश आपके? Favorite subjects are material science, thermodynamics, Material science and thermodynamics. fluid mechanics. Fluid mechanics. Okay. So tell me one thing, Danish. Just state me why you should be higher than all the current competitors of yours. I think my knowledge in my core sector is good and I can contribute because I have good rank in GATE also and I can like easily like learn because I am a fresher and I am eager to learn. And as a mechanical engineer, Shell has main work related to mechanical only compared to other domains. And as a mechanical engineer, I can contribute more as compared to like other branches. So I think it is best opportunity and I can contribute to them. But there are number of competitors. अभी आप एमटेक परस्यू कर रहे हैं, आपका रीजन क्या था एमटेक परस्यू करने का? Ma'am, at that time actually I didn't have any opportunity. Therefore, I took admission as a backup option. So in the year 2024, I again given the GATE exam. That's why because there is uncertainty everywhere.
So that was your backup plan only to do MTech, right? Yes, ma'am. Not a complete plan. Single plan नहीं था. No, ma'am. Are you a team player or a team solo person? I would say team player. I am a yes, ma'am. I am a team player. You have a team player. From where did you get the demarcation? मैं team player अच्छा हूँ. From my football team, I was the captain of my team. You were a captain. And what are the main roles of a captain? Captain के पास सबसे important क्या होने चाहिए? Characteristics क्या होने चाहिए? Like the main characteristics is that it must listen to all its like team players and what for what roles they are like suitable and in which role they can perform well. And Okay. a captain must motivate all its players so that they can perform well. So how would you motivate your this team players? कैसे motivate करते थे कि that they should be performing well? Like they must not lose hope if they not able to achieve the target and able to complete the work in a given time frame. It is important. And That are the if we instructions, not a source of motivation for them, Danish. the major motivation is that if everyone is performing well, then they automatically gets motivated because And if it they is don't, not like if they don't it is perform well, then the main thing will be to find out where what is the error, because everyone is capable of something. If they are not able to perform well in that, then they have to change the task or shift to another task. That is the thing. okay. See, Danish, the जो situational questions है ना, उसमें अच्छे नहीं हो आप. ठीक है? हाँ, जैसे खुद ही घूम जाते हो. मैं तो अभी सिचुएशन इसलिए पूछा है, थॉट कि आपने प्रैक्टिस करी हुई है इसकी. बट आप सिचुएशनल क्वेश्चंस में ज्यादा घूमते हो. ये नहीं होता कि मैम उनको इंस्ट्रक्शंस ही देनी होती. सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या होता है? बहुत सिंपल होता है. जहाँ पे वो अच्छा कर रहे हैं, उनको तारीफ करना. जहाँ पे नहीं कर पा रहे, मैम उनको गाइडिंग करना. उनको गाइड करना, उनको डराना नहीं है. दैट दे शुड बी वेरी मच मोटिवेटेड बाय गिविंग देम गुड गाइडेंस, हेल्पिंग देम और मेकिंग देम इम्प्रूव देयर डिफॉल्टीज, जो भी उनकी गलतियां हैं, उनको इम्प्रूव कराना. वो अगर नहीं कर पा रहे हैं, उनको उनके साथ एम्पैथी रखना अपने टीममेट्स के साथ. उनको अंडरस्टैंड करना, उनको समझना क्या प्रॉब्लम है, उनको सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना. द टाइम दे उनको कब प्रैक्टिस करनी है, नहीं करनी है, अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ एवरीवन. छोटी छोटी चीजें हैं. ठीक है? वही चीजें आपके शोकेस करते हैं आप आगे लीडर कैसे बनोगे. अब ये नहीं अकेला करना मैम. बैकअप प्लान एक एमटेक आ जाता है मैम, फर्स्ट आ जाएगा. बोलने का तरीका उसको थोड़ा चेंज कर लो. It would be, ma'am, my very first dedication was to join a PSC only. But yes, side by side, I plan for MEMTech so that I can nourish my skills. मैं अपने skills को enhance भी कर सकता हूँ. मेरी तैयारी भी अच्छी हो सकती है क्योंकि obviously आप थोड़ा बहुत लिंक रहते हो स्टडीज के साथ. और इससे मेरे को लगता था कि मैं टाइम को अच्छे से डिवोट करके टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ. कंप्लीटिंग द स्टडीज ऑल्सो एंड साइड बाय साइड प्रिपरेशन ऑल्सो. मैम एक्चुअली कंप्लीट तो हो नहीं रहा है, तो वो अगर ऐसे काउंटर क्वेश्चन कर देंगे कि एक्सटेंशन तुम नहीं होगे? नो मैम, वो एक्सटेंशन कुछ मिलता नहीं है इसमें. या तो आप पार्ट टाइम में कन्वर्ट कराओ या मतलब डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेकर लेफ्ट करना पड़ता है. हाँ, तो पार्ट टाइम भी नहीं करोगे आप? पार्ट टाइम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बोल दिया कि फर्स्ट प्रायोरिटी इज एमटेक, तो फिर तो वो ऐसे ही रिजेक्ट फर्स्ट कर देंगे. प्रायोरिटी इज पीएसयू. फर्स्ट प्रायोरिटी इज पीएसयू ओनली. आपने साइड बाय साइड प्रिपरेशन करने के लिए पीएसयू की आपने एमटेक को ज्वाइन किया था, जिससे आपके स्किल्स साथ साथ में नॉलेज आपकी कुछ कुछ बढ़ती है. आप पढ़ते रहते हो, सब्जेक्ट्स के साथ इन टच रहते हो. इस वजह से आपने साथ में एमटेक कर दिया था. बिल्कुल ही बोला मैम, प्लान भी है ये तो. वो थोड़ा टाइम को ये करने के लिए उसको इस तरह से बोलो, मैं मेरी हमेशा से प्रायोरिटी पीएसयूज ही रहे हैं और मैं उनकी तैयारी अच्छे से करना चाहता था. बट साइड बाय साइड मैं अपना ये चाहता था कि मैं साथ साथ में नॉलेज को नरिश कर पाऊँ. गैप को जस्टिफाई करने के लिए, गैप का मतलब कि मेरा ज्यादा गैप भी ना हो जाए स्टडीज के साथ, इसलिए मैंने एमटेक ज्वाइन किया. ठीक है? उसको थोड़ा बेटर वे में बोल दो. दे विल बी आस्किंग यू कि एमटेक को क्यों बीच में छोड़ रहे हो, एमटेक कर रहे हो. अभी एमटेक से क्वेश्चन आना ही आना है. ये तो 100% है. ठीक है? यस मैम. तो सेफ साइड पे लेकर चलो ना. इंट्रोडक्शन कभी दानिश खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो. पहले स्टार्ट करके मैं एक्चुअली बात. एक्चुअली बीच में कॉल आ गया, फिर मैं थोड़ा हाँ, क्योंकि मैं नोट कर रही थी आपने एमटेक किया, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर दोबारा एमटेक हाँ, के प्रोजेक्ट पे आ गए, फिर आपने हॉबीज बता दी. ठीक है? तो वो वो मत करो. गलत. हाँ, वो गलत हो गया आपका. वो पता चल जाता है ना लिखते लिखते कि आई थॉट दैट द एंटायर हायरार्की इज रॉन्ग. सो गुड मॉर्निंग मैम, आई एम दानिश, आई कम फ्रॉम सिटी, जो भी आ गया. कमिंग टू माय एकेडमिक्स, हेडिंग्स को यूज कर लो और थोड़ा फ्लुएंसी पे थोड़ा जोर दे के बोलो. और जो एमटेक का प्रोजेक्ट है ना, उसको बोलो मैम आई हैव डन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स. मेजर प्रोजेक्ट जो मेरा अभी चल रहा है उसका नाम ये है.
अगर पूछा जाता ना कि आपने क्या चीज मेंशन नहीं की है अपने बारे में जो फॉर्म में, तो आप अपनी कोई स्ट्रेंथ भी बता सकते हो, कोई अचीवमेंट। आप फुटबॉल प्लेयर रहे हो, आपने कुछ टूर्नामेंट्स खेले होंगे शायद, खेले हैं कभी यस मैम। कॉलेज, यस वो मेंशन किया है अपने फॉर्म में। मैम, इसका फॉर्म एप्लीकेशन जो बायोडाटा फॉर्म है वो मतलब काफी बड़ा है, मतलब 3-4 पेज का है, उसमें सब इन्होंने मतलब इंक्लूड करवाया है कि तो वो आपके। लिखा है आपने कि मैंने टूर्नामेंट कहाँ यस, खेले हैं या कुछ ऐसा? सर्टिफिकेट्स भी है। एक्चुअली सर्टिफिकेट्स भी इंक्लूड, मतलब आपके +2 से +10 तक और यूजी पीजी सब सर्टिफिकेट्स रहते ही हैं, इंक्लूड। वो तो रहते ही हैं, फुटबॉल के रिलेटेड, आपकी गेम के रिलेटेड कोई यस मैम, टूर्नामेंट, उसमें है। हाँ, तो वो कर चुके हो? एकेडमिक। हाँ। अच्छा, और क्या चीज है ऐसी, कोई स्ट्रेंथ आपकी या कोई और आपका कोई प्रोजेक्ट कुछ ऐसा डिस्कस कर सके हो? क्योंकि उस पे आपकी इंटरव्यू मूव करती है, 2-3 तरह से स्टार्ट होगी, तो उसमें साउंड वोकेशनल ट्रेनिंग का है, मतलब उसका थोड़ा प्रिपेयर करना है। कौन से में किया वोकेशनल ट्रेनिंग? मैंने मतलब इंडियन रेलवे में किया था, यूजी का था मेरा वोकेशनल, बीटेक उस पर का। उस पर डिस्कस कर पाओगे? हाँ, विजेंद्र सर से एक बार बोला था, उन्होंने बताया है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। वो एक अच्छा क्योंकि पॉइंट हो सकता है, क्योंकि अगर आप चाहो तो वो डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि मैम इसमें क्या एक्चुअली करो। में वो रिसेंट ग्रेजुएट्स होते हैं, उन्हीं से मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब करते हैं। मैं एमटेक भी कर रहा हूँ और गैप भी है, तो शायद मुश्किल है मतलब। नहीं नहीं, लेकिन मैं जब प्रिपेयर इन करूंगा। केस इन केस वो ये क्वेश्चन पूछे कि जो अपने फॉर्म में नहीं बचे, देखो दानिश, 3 तरह से आपकी इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रही है। या तो आपसे इंट्रोडक्शन पूछी जाएगी, या पूछा जाता है ऐसी क्या चीज है जो आपने फॉर्म में मेंशन नहीं की है, वो बताइए हमें। या तीसरी, अभी आप क्या कर रहे हो, गैप है आपका, या कौन सी ईयर पास आउट थे। ये 3-4 चीजें हैं जहां से स्टार्ट होना है। तो इंट्रो जो आपकी प्रिपेयर्ड है, आप डायरेक्ट वो क्वेश्चन भी दे दोगे। अब मैं ये क्वेश्चन पे वरिड हूँ, अगर आपको ये पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे थे अभी रिसेंट टाइम में, उसका आंसर कैसे देना, उस पर मैं डिस्कस कर रही हूँ कि उसका थोड़ा बेटर कर लो। अगर ये सिंपल बोलते हैं एमटेक वाला, ये दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, पर मुझे लगता है इससे बेटर आंसर प्रिपेयर हो सकता है, क्योंकि कुछ सेफ मैम नहीं मतलब, लगता। हाँ, ऐसे तो एमटेक ही चल रहा है मतलब। एमटेक में भी तो कई बार होता है कि आपको कोई अवार्ड मिलता है, यूजी में मिलता है, बहुत चीजें होती हैं, जैसे कोई स्कॉलरशिप बैक करते हो, कोई बहुत चीजें होती है पर्सन के बारे में। ये तो आपको बताना पड़ेगा मुझे कि कोई ऐसी चीज है। एमटेक में मतलब अभी मेजरली तो प्रोजेक्ट ही चल रहा है, क्योंकि 3rd सेमेस्टर है। वो तो आपने तो मेंशन किया ही होगा ना। चलो मैं इस पे देखती हूँ क्या हाँ। कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस। व्हाट हैव यू नॉट मेंशन, ठीक है, प्रेशराइजिंग दिस, व्हाई नॉट एमटेक, ठीक है, वाई पीएसयू वाईसीएल। वाई पीएसयू वाईसीएल को बहुत अच्छे से करना, दे आर आस्किंग ग्रिलिंग लाइक एनीथिंग, कि आपको ये चीजें प्राइवेट में भी मिलेंगी। ये रिलायंस, अडानी, ये सारे सेक्टर्स आपको ये करियर ऑप्शन भी देते हैं, ग्रोथ भी देते हैं। कंट्री में भी तो जीडीपी में ग्रो कर ही रहे हो, तो क्यों जाना चाहते हो, वो हर एक में काउंटर कर रहे हैं। तो कॉन्फिडेंटली आपका मेन होना चाहिए, आप कॉन्फिडेंटली अपना बोलो, मेरा इंटरेस्ट पैशन पीएसयू की तरफ है, क्योंकि इंटरेस्ट पे काउंटर नहीं होता। अब आपको फुटबॉल पसंद है, क्यों पसंद है मैं नहीं पूछ रही, ठीक है। आपका इंटरेस्ट पैशन है क्योंकि आपने सेल में, अगर आपने किसी का वर्क कल्चर देखा है, उसके कुछ ओरिएंटेशंस लगाए हैं, कोई ऐसी चीजें जो डिमार्केट कर सकते हो, वो जरूर मेंशन कर देना। या कोई सेल का प्रोजेक्ट जो आपकी सिटी के पास रह रहा हो, कोई काम कर रहा हो आपके घर के पास, वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है, ठीक है। वो जरूर कर लेना एक बार प्रिपेयर। फाइन। यस मैम। के बाद प्रोजेक्ट, हाँ, एक एयर क्वालिटी इंडेक्स, और ये अकेला स्टबल बर्निंग नहीं है मेन रीजन ना, पॉल्यूशन भी आ जाता है, एयर पॉल्यूशन जिसकी वजह से हो रहा है। हमारे इस टाइम पे मैम फायर क्रैकर्स एंड ऑल दैट भी बहुत डिप्लेशन में हुआ था। अब ये मंथ ऐसा है, 2 बारी प्रैक्टिस होता है, तो इस टाइम पे सिवियरिटी भी इसीलिए है, तभी ये सारे स्कूल सब चीजें क्लोज्ड है, ठीक है। ये यस चीजें जो मैम। बता रहे हो तो ये प्रॉपरली बताना है आपने, ठीक है। एंड देन इट इज हॉबीज, ठीक है, वर्किंग और एमटेक प्रोजेक्ट, बाकी आपका ठीक है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन, और ये सिचुएशनल क्वेश्चंस, हाउ वुड यू कीप योर टीम मोटिवेटेड, ये मैंने आपको बता दिया है। गुड लीडर की भी यही होता है कि जो गुड लीडर होता है उसके कम्युनिकेशन स्किल्स, उसको बाकियों को क्या करना आना चाहिए, एक लीड करना, उनको डिसिप्लिन करना आना चाहिए। अगर आप एक, आपके अंदर कुछ सॉफ्ट स्किल्स होंगे, आप पंचुअल हो, हार्ड वर्किंग हो, डिसिप्लिन हो, तो आप ये बाकियों को तभी कर सकते हो ना। खुद में ही नहीं है तो कैसे करोगे। तो एक रियलिस्टिक आंसर दिया करो। आप दानिश सबसे बुरे फंसोगे इन केस यू आर ट्रैप्ड इन सिचुएशन क्वेश्चंस। और सेकंड, ये खुद की फ्लुएंसी में अटकते हो जो, ये 2 चीजें आपकी नेगेटिव है, बाकी आप संभाल लेते हो, ठीक है। तो थोड़ा